Hello everyone, welcome to our podcast series Let's Talk. We are learning from every journey, big or small. So, today's guest is Devashi Mani Tripathi, who is doing an MCA at Triple MUT and is also a digital content coordinator. So, I welcome you to the today's podcast and thank you so much for taking out time for this. Uh, Thank you for the warm welcome, Chehek. I really like the concept of let's talk, learning from every journey, and I'm excited to be featured in this podcast. Looking forward to a conversation. Let's start with a small introduction. Could you tell more about yourself? Hi everyone, my name is Devishi Mani Tripathi. I'm from Gorakhpur, Uttar Pradesh, and I have completed my bachelor's from Manav Rachna International Institute of Research and Studies in Computer Applications. And currently, I'm pursuing my Master's of Computer Application from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. I am interested in data science, and currently, my goal is to hone my skills so that I become someone who contribute to real world projects. Thank you. It's really nice to hear you. But data scientist, like as you told, you pursue BCA and आप टेक में जाना चाहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन आया है, बता पाओगे कि डेटा साइंस होता क्या है, उसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनके लिए समझने में थोड़ा बेटर होगा. Uh, so the story is connected to the part where I completed my 12th class in 2021. And as we all know, it was the COVID era. And I am somebody who likes to march to the beat of my own drums. So 12th कंप्लीट करने के बाद पेरेंट्स का ऐसा था कि immediately hop on to a degree. Basically, I in my 12th class my subjects were like English, Hindi, then computer science, and because I was a science student, so usme biology, chemistry and physics. So they wanted me to go for NEET, whereas I knew that I did not want to be a doctor, like because I really really admire doctors, but I don't see myself as a doctor. And yeah, they were after my life, and I was like, no, I have completed, like, because I have done my entire schooling from this one school, and I just wanted कि नहीं अभी तो मुझे पता है if I hop into another degree I'll have to continue studying, so I just need a year for exploration जिसमें मैं खुद फिगर आउट कर लूँ कि मुझे करियर चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आई डू दी एंटायर डिग्री एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई डिड. आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि देखो मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. प्लान कभी लॉयर बनना था ही नहीं, बट इट्स जस्ट दैट कि आई वॉन्टेड टाइम टू माई सेल्फ. सो दैट ईयर आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. आई डिड लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑन यूट्यूब बिकॉज उस टाइम पे ऐसा भी था कि बिकॉज 2016 में जियो ने अपने डेटा प्लान्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे लॉन्च कर दिए थे, तो इट वॉज ईजियर. एंड क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थे, तो आई गॉट माई ओन डिवाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, and I was like, okay, let's go all in and see what we can do about it. So I started exploring, and then I came across this Edureka um, advertisement where they were talking about what data science is, what data scientists do, and I found it so fascinating. And I signed in because it was a free masterclass, so I signed up. I was like, okay, let's see what this thing is, and I signed up, and seriously, like the way they talked about it, the way they explained everything, it became like it clicked with me. I'm like, yeah, I this is fascinating, and I would love to know more. So I like talked to my dad, and I convinced him ki see, this is this program, and I want to be a data scientist, and I just want to explore how it is. So yeah, I requested him, and he purchased that thing for me. It was a 4 month internship program, and usme I got to interact with Alka Pandey ma'am. She is 40 under 40 uh, data scientist of India. She is like a leader in her field, and she was one of my mentors in that journey. So I got to see up close how she taught. The very basics were very clear to her, and how she would go talk about things and explain कि तो अगर हम बात कर रहे हैं ना डेटा की, तो अगर हम समझें कि अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है, समझिए कि आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं कि कस्टमर्स ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इतने इतने टाइम पे ले रहे हैं, ये वाला टाइम है, समझिए कि ये 5 to 7 वाला स्लॉट है जहाँ पे
सपोज वी हैव अ मिल्क शेक कंपनी, सारे मिल्क शेक सेल आउट कर रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे दिन है जहां पे नहीं कर रहे हैं, तो हम करते क्या है, डेटा वही है कि आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है। डेटा साइंस क्या है कि आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहे हैं टू ड्रॉ इनसाइट्स। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जब हम मूवीज के लिए जाते हैं, जैसे हम समझते हैं कि वी ऑफन गो फॉर अ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन, पॉपकॉर्न्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सो अब अगर आपका एक डेटा साइंटिस्ट है तो वो देखेगा कि कस्टमर्स कौन सा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही सोचते हैं कि अगर एक मीडियम पैकेज है, एक लार्ज पैकेज है, एंड उसका प्राइस बहुत सोच के रखा जाता है कि सिर्फ लाइक 30 to 50 रुपीज का ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जा रहा है लार्ज वाले में। सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रेटेजिक। वही काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कैसे ब्रेक डाउन करें, कैसे उस इन्फॉर्मेशन को अपने काम के लिए यूज करें, आप कैसे बिजनेसेस को बूस्ट दें। सो इट रियली इंस्पायर्ड मी, और मुझे समझ आया कि दिस थिंग ये सिर्फ आप 4 महीने में नहीं सीख सकते हैं। लाइक ऑफ कोर्स दे वर वेरी गुड एट व्हाट दे टोल्ड एंड द काइंड ऑफ स्टफ दैट दे डिड, बट इट जस्ट पीक्ड माई क्यूरियोसिटी कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। एंड या दैट्स ऑल्सो द प्लेस जहाँ पे हमें AI और ML, तो इससे पहले कि AI एंड ML बहुत ज्यादा ऐसा पॉपुलर कॉन्सेप्ट बनता, लोगों को लगता है AI एक फेयरली नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन 1960s के टाइम से ही AI पे काम हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में एंड चीजों में। सो इट्स जस्ट दैट इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी नाउ, लेकिन ये बहुत पुरानी चीजें चली आ रही हैं, एंड आई जस्ट लव एक्चुअली एक्सप्लोरिंग कि जिसने ये डिस्कवर किया वो क्यों किया, कैसे किया, उसके दिमाग में क्या आया। सो या आई एम ऑन दैट जर्नी। दैट्स रियली नाइस टू हियर यू, बिकॉज जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल्स यू गिव, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो भी देख रहे हैं उनको एक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। द वे यू एक्सप्लेन इज रियली ग्रेट। सो मुझे एक क्वेश्चन है, जो आपने बताया कि आपने एक कोर्स लिया था, आई गेस इट्स एड्यूरेका, राइट? तो अगर किसी और को वो परस्यू करना है, मे बी आपको सुन के कोई और इंटरेस्टेड हुआ, उनको ये परस्यू करना है, तो उस कोर्स के बारे में आप बताओगे, एंड उस कोर्स को कैसे, कहाँ से ले सकते हैं, एंड लाइक एज यू टोल्ड इट्स फ्री, तो मतलब आपने इसको कंटिन्यू कितना करना है, एंड इज इट अ इंटर्नशिप, और लाइक किस चीज़ में काउंट होगा? So actually, when I joined the program, it was in 2021. और उस टाइम पे the thing is, after the master class, this is a paid program. So you can just Google Edureka, and Edureka is this company जो आपको बहुत सारे skills में train करती है, जो भी digital skills हैं, from advanced Excel to everything you can that comes in your mind. So you can just check it out on Edureka, and बहुत सारे ads वगैरह भी वो YouTube पे run करते हैं, so people can encounter that. And कई बार उनकी you can just check out the website if you just do edureka.com. You can just check it up for yourself, क्योंकि ऐसा है कि this is समथिंग जहाँ पे आई एम ग्रेटफुल टू देम, बट इट्स लाइक आई एम नॉट वेरी वेरी फेमिलियर विद देम कि मैं एग्जैक्टली बता पाऊँ। लेकिन हाँ, इफ यू इंटरेस्टेड जस्ट गूगल इट अप, दे हैव देयर वेबसाइट एंड यू कैन चेक कि आप किन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, इफ एट ऑल। बट वॉज द कोर्स वर्थ इट? इट वॉज वर्थ इट फॉर मी, क्योंकि मेरा ये चीज था कि मुझे अभी इस फील्ड के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। सो अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है ना कि डू यू नीड मेंटर्स एंड गाइड्स, तो ऐसा नहीं है कि यू कांट डू इट ऑन योर ओन, ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो द बुक्स, यू कैन फॉलो द थिंग्स, लेकिन वही चीज है कि वन जर्नी यू विल कंप्लीट ऑल ऑन योर ओन इन 10 years, एंड दैट पीरियड कैन बी सिग्निफिकेंटली, दैट टाइम पीरियड कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो। जैसे समझिए आपको बुक लिखना है, तो अगर कोई एक पब्लिश्ड ऑथर है, वो आपको फटाफट बता देगा कि देखो अगर तुम्हें राइटर्स ब्लॉक आ रहा है तो कैसे ओवरकम करना है, तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुमको कैसे डील करना है। बट वही चीज है कि अगर मैं खुद से अगर बैठ के देख रही हूँ कि अच्छा बुक कैसे लिखते हैं, मैं जाके एक एक स्टेप गूगल कर रही हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है, और क्योंकि रोड मैप नहीं है, इट विल वेरी टाइम it is time taking, and at the same time because my common source of information would be Google, और वहाँ पे कोई filter out नहीं कर रहा है anybody। अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से किया हुआ है, पहला रिजल्ट ही जो आपको मिल रहा है वो बहुत ही ग्रेवली मैनिपुलेटेड हो सकता है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग है। मेरे लिए वर्थ इट बस इसलिए था क्योंकि मुझे आई सीरियसली, एक होता है ना कि डेटा साइंटिस्ट, दिस टर्म वाज सो कूल टू मी, and then I got to be instructed by two of these data scientists like Nachiket Murthy sir
he has worked for Big Four in the past, and he continues to work in Bangalore. And then Alka Pandey ma'am. So I got to see up close कि ये कितना काम पुट इन करते हैं, कितने डेडिकेटेड है अपने क्राफ्ट को लेके, एंड व्हाई दे आर सो पैशनेट अबाउट इट. सो या इसीलिए मेरे लिए बहुत वर्थ इट था. एट दैट टाइम आई वाज नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, मेरा ये पर्पस ही नहीं था. तो इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ. इट्स आई थिंक वही बात हो जाती है ना कि आपको चीजें दे दी गई हैं, आपको रिसोर्सेज दे दी गई हैं, आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर है. स्टूडेंट्स अपनी स्टार्टिंग जर्नी में जिनको एक आइडिया चाहिए कि डेटा साइंस होता है एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टाइप्स हैं या क्या और फील्ड्स हैं, दे कैन प्रोबेबली जॉइन दिस कोर्स. या आई थिंक सो. एंड दे कैन लुक फॉर एनीथिंग एल्स ऑल्सो. आजकल यूट्यूब पे भी प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है. दे कैन जस्ट गो चेक इट, गूगल इट. या बट यू नो द प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, लेकिन माई थॉट्स ये कि यूट्यूब पे टन्स ऑफ रिसोर्सेज आजकल एंड डिस्ट्रैक्शंस. वो एक वीडियो देखते हैं उसके बाद दे कांट अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट वीडियो देखें, वो एक कंटिन्यूशन में नहीं आता. और अगर कंटिन्यूशन में है तो दे आर लाइक इतने रिसोर्सेज हैं, कम से कम 100 वीडियोज़, 90 वीडियो, 60 वीडियोज़, पूरा डेटा साइंस कोर्स. तो दे गेट कन्फ्यूज एंड वो बोरिंग हो जाता है स्टार्ट में, तो स्टार्टिंग में ही वो लोग लीव कर देते हैं. ये बिल्कुल आई थिंक आई अग्री विद दिस, क्योंकि आज हम वो वाले जमाने में जी रहे हैं वेयर देयर इज एन ओवरवेलम ऑफ इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन कम है, बट ट्रस्टेड सोर्स क्या है. सो आई थिंक जैसे श्रद्धा कापरा मैम, आई थिंक अ लॉट ऑफ us would know about her. And like people like her, उनकी तरीके के जो ऐसे पॉपुलर लोग हैं, जैसे अगर कोई टेक में जा रहा है तो कुणाल कुशवाहा इज अ नेम. तो ये लोग ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं. एंड आई वुड से कि जैसे एक होता है ना कि अगेन मैंने जो राइटर वाला एग्जांपल दिया था, तो गो आफ्टर पीपल या चेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल हु आर एक्टिवली वर्किंग देयर. एक होता है कि आई एम अ टीचर, आई एम अ गाइड एंड आई एम टेलिंग यू. और एक होता है कि नहीं भाई, आई एम लिविंग, दिस इज द रियलिटी फॉर मी, एंड बिकॉज यू हैव आस्क्ड समथिंग फ्रॉम मी, सो आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर द इनसाइट विथ यू. सो वो दो चीज़ों का जो डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, आई थिंक दैट्स देयर. एंड इसीलिए शायद मैंने एड्यूरेका चूज किया था, क्योंकि वही बात है ना कि वी शाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. अभी हम जाएंगे, वी विल ईट अ डोमिनोज पिज्जा, 500 रुपीज स्पेंड जस्ट लाइक दैट, हमको नहीं पता चलेगा. वी वोंट इवन माइंड इट, हमको लगेगा वी हैड अ ग्रेट टाइम. बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन आवरसेल्फ, लाइक किसी के लिए जिम जाना हो सकता है, किसी के लिए कोई स्किल सीखना हो सकता है, तो वी शाई अवे, हमको लगता है सब तो फ्री में मिल जा रहा है. बट वही बात है ना कि जब आप किसी चीज के लिए पे कर रहे हो, तो बात ये होती है कि आपकी साइकोलॉजी में भी आप उसको ज्यादा वैल्यू कर रहे हो. एग्जैक्टली आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप ढूंढ रहे हो कि आई हैव टू मेक इट वर्थ इट, वरना मैं अकाउंटेबिलिटी किसके साथ होल्ड करूंगी, कैसे करूंगी. क्या Absolutely. तो लाइक ऐसे करो, तो आपने इस चीज़ में कोई इंटर्नशिप्स करी हुई हैं और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटर्नशिप्स एंड actually the thing with me is I asked my professors about this. So the current MCA course that we are doing, उसमें ऐसा है कि वी आई थिंक ओनली जब समर ब्रेक से ऐसा कुछ होगा देन वी कैन ऑप्ट फॉर इंटर्नशिप्स, क्योंकि हमारा कोर्स ऑलरेडी वंस यू आर इनटू एमसीए, पीपल लाइक इट्स अ गिवन कि ये, क्योंकि दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, सो पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी इंडस्ट्री रेडी. And our professors and everybody, like I'm so lucky to like be in this university, क्योंकि everybody like does the hand holding for you and आपको चीजें समझा देते हैं. So it's more like कि अभी मेरा ये है कि I have to become competent. Of course I'll do the internships and do get to it जब मेरे पास टाइम होता है समर ब्रेक्स वगैरह में, विंटर ब्रेक्स में. बट मोर अभी मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि टू सब अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर. इफ आई एम बेटर स्किल्ड, अगर मुझे चीजें आती हैं, देन आई एम श्योर कि एनी एम्प्लॉयर वुड बी हैप्पी टू हैव मी देयर. बाकी सबकी इंडिविजुअल जर्नीज होती हैं. सम पीपल लर्न बेटर हैंड्स ऑन, कि अगर हम इफ वी जस्ट थ्रो आवरसेल्व्स, एंड कोई भी रास्ता गलत नहीं, इट्स लाइक टू ईच देयर ओन. पर्टिकुलरली फॉर मी आई वुड लव टू डू इंटर्नशिप्स, लेकिन वही हमारे कोर्स में ब्रेक्स नहीं ले सकते. सो व्हेन देयर इज समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, तब I will definitely look forward to them. Other than that, I think from 2000 like 22, I have been working with a Australian brand. Tech का field नहीं था वो. It was more like mindset and coaching oriented, and it's called Kick-Ass Buddy. It's a brand based in Australia, and yeah, it was really something जो जैसे बस कभी कभी लगता है ना मैजिक हो जाता है आपकी लाइफ में. इट वॉज मोर ऑफ लाइक दैट, बिकॉज हु वुड हैव थॉट अ गर्ल हु हैज जस्ट completed her 12th class and doesn't really have any connections of sorts, उसको एक ऑस्ट्रेलियन बैंकर मिलती है, एंड देन शी ऑफर्स थिंग्स, एंड देन
the girl also thinks कि it's not some kind of scam, and the person sitting on Australia also thinks कि this is not some scam, and then we find the most mentor and mentee kind of bond. So that is really interesting. So I've been working with them part time. I really love that brand. I truly because the tagline goes always in your corner, kick ass buddy. We have been updating it. पहले था everyone needs someone in their corner. लाइक अगर आप दुनिया में सब आपके खिलाफ हैं बट देयर इज जस्ट वन पर्सन, आपका पेरेंट हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, एनीबडी बेसिकली, एंड दे जस्ट से कि यू हैव गॉट दिस, यू कैन डू इट। कोई भी टाइम हो, कोई भी चीज हो, देयर इज दिस वन पर्सन जिससे आप अपनी चीजों को शेयर कर पा रहे हैं, एंड दे जस्ट हैव दिस अटर फेथ एंड बिलीव इन यू कि आप कर लोगे, आप कर लेते हो। या एंड वो फेथ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, वो फेथ आपको पुश करते हैं कि आप करो। वो एक पर्सन भी अगर ऐसा हो कि वो कम्प्लीटली बिलीव से नहीं, इट्स लाइक देन खुद में एक आ जाता है फेथ कि ओके यार, इफ दैट पर्सन इज बिलीविंग मे बी आई कैन डू इट, एंड देन वो मे बी से हो जाता है वर्क। आई कम्प्लीटली लाइक गेट दैट, एंड दैट इज वाई वही बात है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप मशीन्स की तरह ज्यादा एक्ट करो। मतलब पीपल आर लाइक कि प्रोफेशनल रहिए, बट द थिंग इज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस, एंड ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि डेडलाइंस हैं और चीज़ें हैं, बट देन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे just because a coworker checks in on you, like, are you doing fine, how are you doing, let's go for a coffee, let's go have this chat, what's up with you lately, मतलब वो जो, बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, एंड हम एक्सेप्ट करें ना करें, आई डोंट फील सो कि अगर आपकी वाइब किसी इंसान के साथ जैसे मैच हो रही है, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वाइब, कोई सही कोई गलत नहीं है, बट वही चीज़ है कि इधर आई एम रियली लाइकिंग अ पर्सन्स कंपनी, और आई एम लाइक कि नहीं, लाइक दिस वन इज नॉट फॉर मी। बट हाँ, जब आपकी किसी के साथ वैसी लाइकिंग हो जाती है एंड यू लाइक इट, you always would want to spend time with those people, your friend, your best friend, anybody, your colleague, your anybody, any human that you came to know, and हम सबको अच्छा लगता है to talk about our things, to share our stuff, क्योंकि I think deep down we all crave this understanding कि देखो लाइफ में जो चल रहा है वो चल रहा है, बट देयर इज जस्ट पीपल इन माई लाइफ हु अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एंड हु अंडरस्टैंड व्हाई आई एम एक्टिंग द वे आई एम एक्टिंग, एंड इन केस आई गो एस्ट्रे, कोई बहुत ही ग्रेवली गलत डिसीजन में लेने जा रही हूँ, तो मुझे शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं एकदम, ऐसा होता है ना कि डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स, कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लॉस्ट फील कर रहे हो, बट देर आर दीज पीपल हु कैन जस्ट टेल यू कि देखो वी सी कि व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट आई वी ऑल्सो थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम है, एंड यू कैन टेक दिस ऑल्टरनेटिव, सो देयर इज दैट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई लव वर्किंग विद किक-एस बडी। तो ऐसे ही टोल्ड अबाउट कि आपने एज अ डिजिटल कंटेंट कोऑर्डिनेटर काम करते हो, तो इस बारे में आप और बताइए कि इसका वर्क रोल क्या रहता है, एंड इस इंटर्नशिप में आपको मिली कैसे थी, लाइक डिड यू अप्रोच टू देम और आपको उन्होंने अप्रोच करा, एंड इज इट अ पेड इंटर्नशिप और एन अनपेड इंटर्नशिप? Okay, so it is a paid internship. It's more like a job right now, लेकिन a remote job जहाँ पे I have flexibility of choosing the hours I work, and about how I got this opportunity. So ऐसा था कि again I was telling कि जो मैंने एक year off लिया था, many people would assume कि आपको बस नेक्स्ट डिग्री पे हॉप अप कर देना चाहिए, एंड उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, बट आई कैन जस्ट शेयर माई स्टोरी। तो हुआ क्या था कि आई वॉज डूइंग टोनी रॉबिन्स का, उन्होंने 5 डे, फर्स्ट टाइम एवर कोविड एरा में, टोनी रॉबिन्स बहुत ही बड़े लेवल के स्पीकर हैं एंड ग्लोबल स्पीकर हैं, एंड पीपल गो टू हिम एंड दे से कि ही हैज चेंज्ड देयर लाइव्स बाय जस्ट शोइंग देम कि आप अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव और ऑप्टिमाइज रख सकते हैं, सिर्फ आप अपने थिंकिंग और माइंडसेट को लेकर कैसे चीज़ों को बदल सकते हैं एंड काम कर सकते हैं। एंड उन्होंने 5 डे चैलेंज था उनका कोई, जिसको आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोग्राम एक्चुअली, लेकिन फर्स्ट टाइम ही डिड दिस थिंग जहाँ पे दुनिया भर के लोग, सो इट वाज लाइक आप किसी भी कॉन्टिनेंट से हो, हर कॉन्टिनेंट से एक्सेप्ट अंटार्कटिका, सब कोई ना कोई था उस जगह पे, and I just hopped up. I was like, wow, this is interesting because because my schooling was done in a convent school, Carmel School, Gorakhpur, and we our teachers really play a lot of emphasis
कि वी वर्क ऑन आर इंग्लिश. एंड थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स ने ये एक रिस्क लिया था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड दे हैव ऑलवेज लाइक prioritized कि you should be educated and you should pay importance to how you conduct yourself. तो मेरे पास ये एक अपर हैंड था कि जहाँ पे मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है इंग्लिश, मेरा इंटरेस्ट था इंग्लिश में. आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव रियली पॉलिश्ड इट एंड होन्ड इट. तो इस वजह से कोई एक्सेंट अगर कोई दूसरी कंट्री में भी आप यू आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई वोंट हैव एज मच प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड यू. एंड इस वजह से व्हेन आई हॉप्ड अप देयर आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. Like Zoom calls ही थी, but it's like you're sitting there and you are talking to a person who is a CEO of a company based in Utah in USA, and you're just telling them, yeah, I am an Indian student, and you're just having these open-ended conversations. क्योंकि उसमें भी ऐसा था कि people were there because they craved connections, because not just professional connections, because they wanted this thing कि someone understood me and they can tell me कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है और help me figure that out. So that's where I got this global kind of exposure. और वहाँ पे there was this person who goes by the name Kams Fung. She's from Hong Kong, and she moved to Australia, and she has done all these different things. She is a CPA, Indian version of CA जो होता है, उसका एक इंडियन वर्जन CA होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो वही CPA होते हैं. एंड उन्होंने एक ऐसे ही उस ग्रुप में जो फेसबुक ग्रुप था टोनी रॉबिन्स का, उसमें एक शी हैड पुट अप दिस मैसेज कि हे गाइस, it would be really cool, we are interested in a lot of books, and if it's cool for you, this is our Facebook group page, you can come hop in and we can discuss books and we can talk about it. So I did that for about 6 months. It was really really good. अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पा रहा है, वरना otherwise it was like people from all ages. This is somebody whose son is in a high school in France. This lady is from London, she moved to France and now his son is in high school. या फिर ऐसे काम्स हो गई, या फिर the person I'm working with currently, she is amazing, and her name is Preeta Bolaki. तो प्रीता वॉज अ बैंकर प्रीवियसली, एंड आज भी वो बहुत जगह पे स्ट्रैटेजिक मेंटर्स की तरह एक्ट करती हैं. एंड नाउ शी इज़ अ ग्लोबल स्पीकर, एंड नाउ शी इज़ क्योंकि उन्होंने देखा है अप क्लोज कि जैसे अब कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट्स और सीईओज होते हैं, ऐसे पहले मुझे लगता था मूवीज में हाउ कूल इज दैट. बट अभी यू सी अनदर साइड ऑफ इट कि लिटरली कितना काम ये लोग करते हैं, and how hard they push themselves, because it's like, because when you are a leader, everybody is expecting you to give them a direction. आपके पास वो लग्जरी नहीं होती है कि you can take this back seat and आपको कोई बता रहा है कि ये 5 काम कर दो, काम हो जाएगा. आप ही हो जो 10 लोगों को बता रहे हैं कि हर एक उस इंसान को वो 5 काम कौन से करने, और हम सबने ये कर दिया तो कैसे होगा. तो वही चीज था व्हेन आई गॉट इन देयर. आपको लोगों की डोमेस्टिक प्रॉब्लम सुनने को मिल रही है, लाइक दे वर कूल अबाउट इट. कोई स्पेन से है, कोई कहीं से है, एंड वी द कॉमन लैंग्वेज इन द ग्रुप वाज इंग्लिश. एंड they all are telling their share, like a lady moved from China to Australia, and फिर वो अपने struggles बता रही हैं कि कैसे उनको क्या challenges आ रहे हैं. क्योंकि a lot of time वही होता है कि हर city हर जगह पे you will find all sorts of people. Some who are really kind and nice, some who are pure evil. आपका हर तरह से वो एडवांटेज लेना चाहेंगे, एंड सबको वो एक्सपीरियंसेस थे. वी वर डिस्कसिंग एंड डूइंग स्टफ लाइक दैट, एंड काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, हमने डिस्कस करी थी. वी होस्टेड साइमन अलेक्जेंडर ओंग, जो एनर्जाइज बुक के वो हैं, राइटर हैं, एंड इस तरीके के बहुत अमेजिंग पर्सनालिटीज भी होस्टेड, एंड ये चीज़ चल ही रही थी. अब मुझे टेंशन हो रही थी कि 2022 में आई हैव टू साइन अप फॉर कॉलेज, एंड क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है. बट मीन वाइल ऐसे ही मुझे प्रीता का ही एक टेक्स्ट आता है फेसबुक पे कि लेट्स if you're cool with it, I really like your personality, and I would love to discuss something with you, and let's do a 15 minutes or 30 minutes Zoom meeting. We can extend it if it goes really well. तो I was like, okay, cool. मेरा तो ऐसा था भाई, मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, सोच में डूबी हुई हूँ, and अभी now the opportunity has knocked on my door. Let's see where it goes ना. एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम क्या है, क्या ही रिस्क है मेरे पास.
And because by that time Preeta ko I knew very well कि she is someone who is very they walk the talk. अगर वो कह रहे हैं वो चीज ये करेंगे तो वो करेंगे. दे आई हैड सीन दैट मल्टीपल टाइम्स. सो अगेन बहुत थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि कोई भी अप्रोच कर रहा है तो आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक्स वगैरह करें. सो आई न्यू हर बाय देन ऐसा. I hopped up and she was like, I'm thinking of starting this company. This is the concept. And she explained it to me कि कैसे, because she has been in very high. She was a banker, right? Bankers का लाइफ ही बहुत अलग होता है. लोग कहते हैं अगर आप या तो डॉक्टर या तो बैंकर, आप किसी एक प्रोफेशन में घुस जाओ, सो उनका वर्क एथिक बहुत कमाल का होता है. तो वही चीज था कि आई गॉट टू लर्न अप क्लोज एंड पर्सनल. उन्होंने ये कंपनी का आइडिया रखा है, एंड आई वाज लाइक क्या कूल, बिकॉज आई एम इनटू माइंडसेट. अभी ये बुक सेशंस करके भी मुझे समझ आया कि मोर काइंडनेस इज नीडेड इन द वर्ल्ड. पीपल क्रेव दैट, क्योंकि लोगों को लोनली लगता है. फर्क नहीं पड़ता. इवन माइकल फेल्प्स इतने बड़े स्विमर है, लेकिन नाउ ही एडमिट्स कि बहुत ज्यादा टाइम वो डिप्रेशन में उन्होंने गुजारा है. सो आई थिंक वो बस एक अंडरस्टैंडिंग इंसान की होती है. शी ऑफर्ड एंड आई एक्सेप्टेड. एंड उस टाइम पे ऑल्सो बिकॉज आई वॉज एक्सप्लोरिंग, तो मैंने नेगोशिएशन वगैरह के बारे में थोड़ा सुना था. somebody is offering you this, then you pitch a counter offer, and then maybe they will suggest something a lower margin. And वही चीज हुआ. She told me कि you have to work this many hours a week, and I was like कि ठीक है, अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ ऐसा, and I'd love to work. And we were the setting up, and she offered me an amount, and I was like कि that would be like can we do this amount instead. Then she was like वो मेरे लिए ज्यादा हो रहा है, why don't we do. तो हम एक मिडिल ग्राउंड पे पहुंचे. बिकॉज हाँ वही चीज था कि आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. वही चीज थी कि आई जस्ट टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे करते हैं, एंड शी अग्रीड लकीली. एंड हाँ उसके बाद इट वॉज लाइक कि हाँ आई एम वर्किंग ऑल्सो, आई एम लर्निंग ऑल्सो, एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट. इट वॉज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, कि ऐसा नहीं है कि अ प्रॉपर सैलरीड अमाउंट. इट वॉज मोर लाइक कि जैसे उनको ही कुछ दिख गया हो कि आई वॉन्ट टू ट्रेन दिस पर्सन, तो शी ऑफर्ड मी दैट. एंड इज लाइक हाँ करते हैं. बेसिकली वो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आपने कोई ऐसा आपकी इंटेंशन नहीं था, जस्ट यू लाइक रीडिंग बुक्स, तो आपने वो ग्रुप ज्वाइन करा, एंड उसके बाद से ही आपको अपॉर्चुनिटी. व्हेन यू ज्वाइन यू डोंट हैव एनी इंटेंशन कि आपको मिलेगा, या फिर यू हैव टू डू इंटर्नशिप इन दिस और एनीथिंग. हाँ एक्टिव जॉब सीकिंग या एक्टिव ऐसा कुछ नहीं कर रही थी मैं. मेरा मेन चीज बस ये था कि लेट्स जस्ट गो, एंड वहां से वी ऑल आर स्मार्ट इनफ कि विल फिगर इट आउट. अगर कुछ ऐसा आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है तो वेल एंड गुड. माई प्राइमरी इंटेंशन वॉज कि जाते हैं, देखते हैं और सीखते हैं. क्योंकि एवरी पर्सन मतलब मैं अगर इंडिया में बैठी हुई हूँ, मैं एक शो बिंज वॉच कर रही हूँ, मेरा नॉलेज वहीं तक लिमिटेड है. मुझे रियल वर्ल्ड स्किल नहीं मिल रहा है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री के इंसान से कैसे बात करनी है या क्या करना है. ये जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, ये आसपास इंटरनेट पे ऐसे पड़ी हुई होती हैं. हम ज्यादा जैसे होता है ना कि दिमाग में एक पार्ट है RAS, तो आपका RAS एक्टिव हो जाता है. अगर आप यही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो ना, वही अपॉर्चुनिटी वैसी की वैसी ही पड़ी है, बस आप थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो. जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि चेक स्पॉट रेड कार्स, तो पता है 10 12 20 रेड कार्स गई होंगी, आपके ध्यान में ही नहीं आया होगा. बट नाउ दैट आई हैव सेड चेक स्पॉट रेड कार्स, अब नाउ आपका दिमाग के RAS एक्टिव है, और आप चलते फिरते आपको यहाँ दिख रहे हो, और यू आर टेलिंग मी कि आई हैव काउंटेड 12 कार्स अभी तक, तो अभी पिछले आधे घंटे में. सो वही चीज होती है कि आई वॉज एक्टिव अबाउट दैट. मेरा क्यूरियोसिटी था, मेरा ऐसा कुछ नहीं था. जो बेसिकली इसमें जो वर्क रहता है वो ये रहता है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लाइक एक उनको समझाने में, एक्सप्लेनिंग में, उनका माइंडसेट क्रिएट करने में. और इसका एक्चुअली वर्क क्या रहता है? ठीक है, तो डिजिटल कंटेंट कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है, अभी एटलीस्ट मेरे लिए ये है, हो सकता है कोई और कोऑर्डिनेटर हो जिनका और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि आप डिजिटल कंटेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हो. मतलब डिजिटल कंटेंट आपके वीडियोस हो गए, आपके रील के आइडियाज हो गए, अगर आप जिनके साथ काम कर रहे हो, अगर वो स्पीकर गिग्स करते हैं या वो ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि देखो मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है. एंड क्योंकि जैसे हम मेरे और प्रीता के केस में ये है ना कि हमारा गोल और थिंकिंग पैटर्न बहुत सिमिलर है. ऑफ कोर्स शी इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी, बट उनको वही वो एडवांटेज हो जाता है कि इफ शी इज हैंडलिंग थिंग्स टू मी, देन आई जस्ट नो कि हाउ टू डू इट हर स्टाइल. हमारा अपना आपस में
कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी समझ है कि हमें क्या पसंद है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे हमारा एक पॉडकास्ट है किक एस बडी कनेक्शन, तो इसमें अगर आप चेक करोगे अभी तक वी हैव लॉन्च 3 एपिसोड्स, एंड इसमें अभी हमारा लेटेस्ट एपिसोड था हाउ टू से नो विदाउट गिल्ट। यू नो, क्योंकि बात यही है कि द पर्सन वी वर हैविंग कॉन्वर्जेशन विथ वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड, जैसे ऑस्ट्रेलिया या ऐसे जो नेशंस होते हैं हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा ऐसी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे एक चाइनीज कम्युनिटी होगी, एक इंडियन कम्युनिटी होगी एंड स्टफ लाइक दैट। इंडिया में भी होता है, अगर आप वाराणसी चले जाओ तो आपको दिखेगा कि ये तमिल कम्युनिटी है, ये बंगाली कम्युनिटी है, ऐसे होता है ना। तो शी इज दिस वन पर्सन जो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी एसोसिएटेड है उस रीजन में, एंड वो बहुत ज्यादा ऐसा कमिटी वर्क करती हैं और बहुत सारी चीजों की हेड और लीडर रह चुकी हैं। तो एट ऑल टाइम्स पीपल विल कम एंड आस्क हर की यू नो कुछ भी है। अब मैं आपको जानती हूँ, अब मेरे पास ऐसा है कि चहक मुझे आ नहीं रहा है कि गूगल डॉक कैसे खोलते हैं, तो अब मैं आपको कॉल कर रही हूँ कि मुझे सिखा दीजिए कैसे करते हैं। लेकिन ये मेरी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बहुत छोटा काम है ना। मेरे पास अभी 1000 ऐसे काम हैं जो मेरे अटेंशन को डिमांड करते हैं, जहाँ पे मुझे देना है। तो हाउ डू यू पोलाइटली लाइक गाइड देम अवे फ्रॉम यू? सो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो उनका एक्चुअली वर्क क्या रहता है, लाइक वो किस मोटिव पे काम कर रहे हैं? सो इफ आई टॉक अबाउट किक-एस बडी, किक-एस बडी का कॉन्सेप्ट ही यहीं से आया था कि एवरीवन नीड्स समवन इन देयर कॉर्नर। द पर्सन आई एम वर्किंग विद, प्रीता बुलाकी, बेसिकली वो काफी हाई लेवल बैंकिंग करी हुई है उन्होंने एक पॉइंट पे, और इस वजह से उनके ऐसे काफी सारे लोगों को वो जानती थी, उनके फ्रेंड्स थे जो एक्चुअली आपको ऑन पेपर तो दिखेगा कि इनके पास सब कुछ है, फैमिली है, गाड़ी है, लाइफ है, वॉट एवर एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। एंड बिकॉज दिस इज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वी कैन जस्ट इमेजिन कि पेज सबके बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है अपनी लाइफ से। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या चीज हम बेटर कर सकते हैं, क्या हमें फुलफिलमेंट बस नहीं मिल रही, हमको वो चीज मिसिंग लग रही है, या फिर कोई बहुत सफर कर रहा है किसी चीज को लेके, वो बता नहीं पा रहा है। तो मेन एम यही था कि इन लोगों को बताना कि ठीक है, यू हैव दिस पर्सन हु इज इन योर कॉर्नर, एंड आप अगर हमसे अपनी चीजें शेयर करते हो, वी विल हेल्प यू फिगर इट आउट कि आप अपने प्रोफेशनल गोल्स को कैसे आप अचीव करेंगे, पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस कैसे लाएंगे, एंड कैसे एक होता है ना कि यू हैव दिस अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, तो आप वो अपने पोटेंशियल को कैसे फुलफिल करते हैं, हाउ डू यू लिव अप टू योर पोटेंशियल, दैट्स आवर गोल। यस, बिल्कुल सही कहा। एंड मे बी आज के वर्ल्ड में मेरी ज़रूरत भी हो गई, लाइक नॉट ज़रूरत बट एक कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में एक नीड सी रहती है कि समवन इज अंडरस्टैंडिंग अस, मे बी हम लोग अपने पोटेंशियल से और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या, लेगा आप अपने फ्यूचर में नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर्स और मे बी 10 ईयर्स में अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान देखती हूँ, एटलीस्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई टेक स्किल्स, क्योंकि आई हैव साइंड अप फॉर टेक डिग्रीज कॉन्स्टेंटली, और डिग्रीज के पीछे का रीजन भी यही था कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस फील्ड। सो मैं एक ऐसे लेवल पे होना चाहती हूँ जहाँ पे ऑफ कोर्स देयर विल ऑलवेज बी अ स्कोप कि आई कैन बी बेटर एंड आई कैन लर्न समबडी, एंड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड जिसको मुझसे 1000 गुना ज्यादा पता है। बट एटलीस्ट आई वॉन्ट टू बी एट अ स्पेस जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इफ यू आर हैंडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, आई एम गोइंग टू डिलीवर। आपका जो भी गोल है, इफ यू आर माई क्लाइंट, इफ यू आर माई कंपनी, इफ यू आर हुएवर, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आई कैन फुलफिल इट इजीली, एंड आई कंट्रीब्यूट टू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स जो हमें बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प कर रहे हैं। एंड आई हैव दिस passion for storytelling, I really enjoy it, and I love guiding people, and I love communities, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्लेस जब कोविड का आइसोलेशन वाला दौर था, तो जब मैंने जैसे बोला कि मैंने ये बुक क्लब ज्वाइन किया था, एंड उन सबका प्रॉब्लम यही था कि सब कहीं ना कहीं आइसोलेटेड थे, तो उस वक्त इसलिए पॉकेट ऑफ टाइम जैसे क्रिएट हो गया हो जहाँ पे मैंने अप क्लोज एंड पर्सनल पावर ऑफ कम्युनिटीज देखी है, कि सिर्फ ऐसा होना कि आप 4 लोग को जानते हो और वो 4 लोग आपको जानते हैं, आपके साइकोलॉजी के लिए वो लाइक इट डज वंडर्स फॉर योर साइकोलॉजी। तो मेरा वही है कि आई वुड लव टू गेट कनेक्टेड विथ मोर पीपल, लर्न फ्रॉम देम, एंड एज यू से कि व्हाट वाज दिस थिंग, like this podcast we are on, it's called Let's Talk, learning from everyone. So I will continue to do that. Every life that I touch, bhagwan kare they learn something from me and I learn something from them. Yeah, that's what I'm going to do. Yeah.
सो जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं या फिर जो भी पीपल हमको देख रहे हैं, तो आप उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे? I will say be receptive. लाइक कई बार आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि यू आर बीइंग टारगेटेड, होता है, क्योंकि हम फंस जाते हैं उस चक्कर में, या फिर हम नहीं बात कर पाते, यू आर बीइंग टारगेटेड, या यू आर फीलिंग आइसोलेटेड। आपको ये समझने की जरूरत है आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो। आपको ये समझने की जरूरत है। कई बार आपका दिमाग आपके साथ ट्रिक्स प्ले करता है कि ठीक है, मान लीजिए अगर चलते चलते मैं ग्लास के दरवाजे से टकरा गई एंड मैं सोच रही हूँ कि यार वो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था और लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन पता है क्या है कि इंसान ना, किसी भी इंसान के बारे में 2% से कम थॉट्स होते हैं आपके बारे में। अगर आप एक अच्छे फ्रेंड हैं तब भी इतने थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो इतना सेल्फ कॉन्शियस होना बंद करके शो अप एज योर बेस्ट सेल्फ, शो अप एज योर बेस्ट सेल्फ। लेकिन अगर थिंग्स गो साइडवेज, जस्ट ये समझिए कि वो जो होना था वो हो गया एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। एंड हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो जस्ट बी रिसेप्टिव कि आज के दिन में कुछ भी हो, I am going to learn. I am going to learn from every experience that's happened in my day. And yeah, that would be my advice. Okay, so thank you so much, Devishi. It was really a great talk with you. काफ़ी लोग जो भी हमको देख रहे हैं, रियली होप कि उनको काफ़ी कुछ समझने को, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, बिकॉज आई माई सेल्फ लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट. I just have to say thank you for being such an amazing host, and thank you for connecting with me. I really learned doing this, and it made me realize that I would love to do something more in this area, like content creation. And hopefully this just inspired me so much. What you're doing is wonderful, and seriously, just learn. I love this tagline of yours, learning from everyone. So let's continue doing that until we meet next time. Yeah. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया. एंड इस पॉडकास्ट का मोटिव ही यही है, लर्निंग फ्रॉम एवरी जर्नी, बिग और स्मॉल. तो अगर आपको अपनी कोई जर्नी शेयर करना, आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, डू कनेक्ट विद मी, बिकॉज एवरी स्टोरी इज़ वर्थ शेयरिंग, बिकॉज मे बी योर स्टोरी कैन हेल्प मैनी स्टूडेंट्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. तब तक के लिए बाय बाय गाइस.